السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اپنے اللہ کو ہمیں لے کر چلنا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بسا کر زندگی گزارنا ہے۔ دوستو، ہم اپنے اللہ کو ساتھ میں لے کر چلیں گے تو اللہ پاک انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ ہر مسئلے کو اللہ حل کریں گے۔ دوستو، ہر مسئلے کو حل کریں گے۔ کوئی مسئلہ ہمارے سامنے نہیں رہنے والا، کبھی نہیں رہنے والا جب ہم اپنے اللہ کو پکڑ کر چلیں گے۔ دوستو، اور ہمیشہ اپنے ساتھ 3 چیزیں مقرر کرے۔ دوستو، پہلی ایک چٹائی مسلح، دوسرا اپنے کھانے کا توشہ سفر میں، اور تیسری پانی کی بوتل۔ کدھر بھی جائے، گھر میں سے کام کو جائے تو بھی نہیں، یہ 3 چیزیں ہمارے ساتھ رہے۔ دوستو، 3 چیزیں ساتھ میں رہے تو سمجھو اپنے کو نماز کا وقت آیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں، پانی سے آپ انہیں وضو کر سکتے ہیں، اپنی حاجت کو بھی پورا کر سکتے ہیں۔ اس لیے پانی ہمیشہ رکھے۔ پانی سے ہماری بدن کی ہمیشہ پاکی رہے گی۔ دوستو، انشاءاللہ کریں گے۔ اور دوسرا دوستو، ہم جب سفر میں آئے تو کتنے ایسے موڑ ملتے ہیں، کتنا ایسے لوگ ملتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہمیں دکھتے ہیں، تو اپنے نگاہوں سے بچنا ہے۔ دوستو، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنا ہے۔ ہر برے آفتوں سے ہمیں بچنا ہے، ہر برے آفتوں سے، ہر بری چیز سے بچنا ہے۔ سمجھو نگاہ گری ہے تو ہم اپنے نگاہوں کو جھکانا ہے۔ کائے کو جھکانا ہے کہ اپنے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 فرشتے اللہ پاک نے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں، منکر نکیر ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، منکر نکیر سیدھے ہاتھ پر منکر ہے اور نکیر دائیں ہاتھ پر ہے۔ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ نیک کام لکھتا ہے، اچھے کام لکھتا ہے، اور بایاں والا یعنی الٹے ہاتھ کا جو فرشتہ ہے وہ گناہ لکھتا ہے۔ دوستو، گناہ کے کام لکھتا ہے۔ ہم جو غلط کام کرتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں۔ اور موت کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے۔ دوستو، یہ تصور کرنا ہے، حالانکہ موت کا فرشتے کو معلوم نہیں کہ کس کی روح کبھی قبضہ کرنی ہے، اس کو معلوم نہیں۔ اللہ جب بتاتے، جب وہ اس کے پاس، اس علی کے پاس جاتا ہے۔ دوستو، تو اپنے نگاہوں سے بچنا ہے۔ میں کدھر تھا؟ اپنے نگاہوں سے بچنا ہے، برے سنگت سے بچنا ہے۔ دیکھو دوستو، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے بنو گے، برے لوگوں کے ساتھ پھریں گے تو برے بنیں گے۔ اس لیے ہمارے دوست جو بھی غلطیاں کر رہے، گناہ کر رہے، تو اس کو سمجھانا۔ دوستو، اپنے کو جمتا تو سمجھانا، نہیں جمع سمجھانے تو ان کے لیے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ، میرا یہ ساتھی ہے، میرا دوست ہے، یہ غلط کام کر رہا ہے، گناہ کے کام کر رہا ہے، اللہ اس سے بچا۔ اور اپن بھی دیکھو، اپنا بھی کسی سے غلط ریلیشن ہے، سمجھو ہم چٹنگ کر رہے، گناہ کر رہے، زنا کا کام کر رہے، تو ہم اس گناہ کے جو کام کر رہے، زنا کر رہے، تو ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور جو حرام ریلیشن ہے اس سے ہم بچے۔ دوستو، کیا کرے کہ ویسا بھی ہمارا چل رہا ہے، 2 جن کا ہماری ملاقات ہو رہی ہے، ہم سے زنا ہو رہا ہے 2 جن کا، تو فوراً ہم کیا کرے، مشورہ کرے، دونوں میں مشورہ کرے، دیکھ ویسا بھی تیرا اور میرا چل رہا ہے، ہم گناہ کے کام کر رہے، کیوں نہ ہم نکاح کریں گے، ہم حلال رشتہ اپنائیں گے، ہمیں اللہ کے فضل سے ہمیں 10-12 ہزار میں ہمارا نکاح ہو سکتا ہے۔ 2001 روپے کا حق مہر دینا ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں ہمیں نکاح کرنا ہے، اور حافظ صاحب کو خطبہ پڑھانے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے حافظ صاحب کو 200-500 روپے ہدیہ دینا ہے، اور پھر حافظ صاحب کیا کریں گے، 2 گواہوں کے موجودگی میں نکاح پڑھائیں گے، پھر خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، اور پھر کھجورے 1 آدھا کلو کھجورے تقسیم کرنا ہے۔ کتنے ہوئے؟ 2001 روپے مہر ہوا، حافظ صاحب کو ہدیہ 500 روپے ہوا، اور 2000 میں 5 کلو چکن یعنی 1000 روپے گئے، 10 کلو چاول کتنے گئے، 500 روپے گئے، اور مسالہ بسالہ کرکول 600-700 روپے، یعنی 3000 میں یہ ہوا، 3 2 5 5,500، اور ابھی جو بچے ہیں 4,500، اس میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، یعنی ولیمہ کا کھانا ڈال سکتے ہیں۔ دیکھو دوستو، ایک دم آسان ہے،
हाँ, इतना ही मेहर होना बाबा, कम से कम चांदी आने होना, कम से कम 7,000 मेहर होना, ऐसा कुछ मसला नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ मसला। हाँ, आपली परस्ती ज़्यादा है, अल्लाह पाक ने हमारे को भरपूर माल दिया है, तो अपन 10,000 क्या 50,000 भी मेहर बांध सकते, हक मेहर 50,000 भी बांध सकते, 1 लाख भी बांध सकते हैं। लेकिन तुम्हारी जैसी हैसियत, समझो तुम्हारे पास समझो 7,000 रुपये मेहर को देने को अदा करने नहीं है बाबा, 10,000 मेहर नहीं दे सकते, तो क्या तुम वैसे ही रहने वाले? हाँ, गलत काम करने वाले, निकाह नहीं करने वाले। हाँ, कि किसी का सुनने का नहीं है। अपने पास जो भी पैसे है, अपने पास जो भी अपने पास अल्लाह पाक ने जो माल दिया है, अपनी जो अपन समझो अपन एक आदमी 1,000 रुपये दिन को कमा रहा है, वो कम से कम 10,000 मेहर दे सकता है। एक आदमी समझो 50,000 उसको तनख्वाह है, वो 50,000 अपनी 1 महीने की पगार दे सकता है। लेकिन एकदम कमज़ोर है बेचारा, 300-400 रुपये मिला रहा है, वो किधर से मेहर इतनी 10,000 15,000 दे सकता है? जो भी है अल्लाह को समझता है। अल्लाह, दुनिया में जितने भी आलिम हैं, मुफ्ती है, सबके आलिम हमारे अल्लाह पाक हैं। हाँ, सबसे दुनिया में जितने भी इल्म वाले हैं, सबसे इल्म वाले हमारे अल्लाह पाक हैं। अगर अल्लाह चाहते तो आदम अलैहिस्सलाम को और हवा अलैहिस्सलाम का हक मेहर अल्लाह पाक ने बोले होते कि 10,000 रुपये, ए आदम तू 10,000 रुपये मेहर दे। क्यों आसान किया अल्लाह पाक ने? क्यों आसान किया बोलो तो? अल्लाह पाक ने आसान क्यों किया? अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम का निकाह किया दरूद शरीफ पढ़ाकर, कि तो तुम्हारा दोनों का मेहर दरूद शरीफ पढ़ो। ए आदम, तेरा मेहर दरूद शरीफ है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़। ये उन दोनों का मेहर है। हज़रत फ़ातिमा का मेहर भी पैसे से हुआ होता, लेकिन अल्लाह जो चाहते हो होता है। तमाम उम्मत अल्लाह पाक ने जन्नत में उनका ये मेहर है। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे, या रब्बी उम्मती, या रब्बी उम्मती। अपने बाप का रोना ये नहीं हुआ, वो भी बेचारी अल्लाह के पास रोने लगी। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और बोले कि पूरे जन्नत की सरदारीन बना रहा हूँ, सब कुछ अल्लाह, पूरी दुनिया आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये जो आप मेहर मांग रहे हैं, अल्लाह के पास मांग रहे, ये नहीं। तो अल्लाह पाक के पास उन्होंने दुआ की है हज़रत फातिमा ने कि मेरे प्यारे नबी, मेरे अब्बा, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ये मेरा मेहर हो, ये मेरा मेहर हो। तमाम उम्मत जन्नत का मेहर है। हज़रत फ़ातिमा का जो मेहर है वो तमाम उम्मत जन्नत में जाए, कैसी जाए, ये मेहर है हज़रत फ़ातिमा का। लाडली बेटी का मेहर है हज़रत फ़ातिमा का। अल्लाह जो चाहते वो होता है। इसलिए जिसकी जैसी हैसियत, जिसका जैसा पगार, जिसका जैसा रुतबा है, उस हिसाब से मेहर दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम 1-1 लाख रुपए मेहर दो, लेकिन जो गरीब हैं, जो बेचारा 4 और 5,000 10,000 जो मिला रहा है, वो किधर से मेहर देगा? 7,000 8,000? क्या उसने कर्जा निकाल कर निकाह करना है और फेरते बैठना है? और देखो दोस्तों, शादी के बाद वलीमा 1,000 लोगों को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, 500 लोगों को दावत देने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे घर के अफराद कितने हैं? 4-5 लोग हैं घर के, और लड़की के अफराद कितने हैं? 3-4 हैं। तो 10-15 लोगों को भी वलीमा का खाना कर सकते हैं। और निकाह के वक्त में हाफिज़ साहब जो निकाह पढ़ाने वाला है, और घर के अफराद और बाहर के अफराद, एक 10-15 लोग रहे तो उसमें भी निकाह हो सकता है। असल निकाह 2 गवाह के और मेहर, नकद मेहर का ये असल निकाह है। 2 गवाहों की मौजूदगी में निकाह हो सकता है। और हक मेहर जो भी आप दोनों के मशवरे से जो भी 2,001 रुपये का रखो, तुम्हारी हैसियत रही तो 10,000 करो, 15,000 मेहर दो तुम्हारी। लेकिन एक गरीब आदमी क्या करेगा? जो भी वो देगा, 2,001 रुपये हो या 2,551 रुपये हो, कितना भी मेहर देगा तो उससे निकाह हो सकता है। ऐसा ही नहीं कि 10,000 देने होना, 15,000 देने होना मेहर, ऐसा कुछ मसला नहीं है दोस्तों। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी अपने को क्या करना है कि ये जो अभी देखो, वो
उसको कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी अपन मसला बोलेंगे, बाबा इतना 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 मेहरी देने होना, तो फिर वो अपने हराम रिलेशन वैसा ही करेगा। चलो ये निकाह के झड़ती का को 500 रुपये में अपना जो काम कर रहा है वैसा ही काम करेगा। 500 रुपये 1000 रुपये देकर वो गलत काम में मुब्तला हमेशा रहने वाला। इसलिए वैसा न कहे दोस्तों। जो भी अपना हराम रिलेशन है, जिना कर रहे, गुनाह के काम कर रहे, उससे बेहतर है निकाह। और निकाह में तुम 2001 रुपये मेहर दे सकते हैं। तुम वलीमा का खाना 10-15 लोगों को कर सकते हैं। तुम शादी का खाना भी 10-15 लोगों में कर सकते हैं। 10,000 में अल्लाह के फजल से निकाह हो सकता है। क्योंकि हमें हलाल रिश्ता अपनाना है, निकाह कराना है, शादी करना है, अल्लाह के रज़ा वाले काम करना है। तो 2 गवाहों के मौजूदगी में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, लड़की बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़लाँ को कबूल किया, लड़का बोले अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़लाँ को कबूल किया। 3 मरतबा बोलना है। लड़की भी 3 मरतबा बोले और लड़का भी 3 मरतबा बोले। और हक मेहर जो 2001 रुपये हो या 2551 रुपये हो, या तुम्हारी हैसियत के हिसाब से तुम 5000 रख सकते। ऐसा ये मसला नहीं है कि बाबा इतना ही मेहर रखने होना, ऐसा कुछ नहीं। और फिर खुतबा है, फिर 1 आधा किलो खजूर लाना है और तकसीम करना है। और फिर वलीमा का खाना तुम 50 लोगों को करने की क्या ज़रूरत नहीं। घर के लोग कितने हैं तुम्हारे? 4-5 लोग। और लड़की के घर के लोग कितने हैं? 4-5 लोग। तो तुम 10-15 लोगों में वलीमा का खाना कर सकते। इतना ही करने होना, इतना ही कर्जा निकालने होना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम कर्जे से बचने के लिए एकदम आसान निकाह है। निकाह को आज हमने मुश्किल किया है। और निकाह में असल हम निकाह के शादी समझो अभी वलीमा का खाना दे रहे, तो हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, खाने की दावत देते हैं। हाँ, क्यों? कि वो जब खाने आएगा तो 500 और 1000 रुपये का पैकेट हमारे को करेगा। लेकिन किसी गरीब को बुलाते नहीं, एक यतीम को। तुम वलीमा का खाना, शादी का खाने में एक दो यतीम बच्चों को, एक गरीब बच्चों को दावत दे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राज़ी होंगे। तुम बड़े लोगों को दावत देंगे, हाँ बुलाओ, सबको बुलाओ, लेकिन कुछ यतीम बच्चों को, कुछ गरीबों को भी खाना खिलाओ तो अल्लाह राज़ी होंगे। जिस दुआओं में यतीम बच्चा हो, जिस दुआ में यतीम बच्चा हो, जिस दुआओं में गरीब बच्चा हो, तो दुआएं कबूल होती है। हाँ, हम कौन सी भी दुआ मांगते टाइम अपने घर का तकाजा हो, बाहर का तकाजा हो, दुनिया का तकाजा हो, तो हम छोटे छोटे बच्चों को दुआओं में शामिल करना है तो अल्लाह राज़ी होंगे दोस्तों। अल्लाह को राज़ी करने का अमल करना है दोस्तों। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। और दोस्तों, हम जो भी करेंगे अल्लाह देख रहे हमें, हम जो भी बोल रहे अल्लाह सुन रहे। हाँ, हमारे को बोलने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह कादिर मुतलक है। अल्लाह बातिन को भी जानते हैं और ज़ाहिर को भी जानते हैं दोस्तों। इसलिए उसका नाम ही है वैसा, अल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु बियदिकल खैर युही व युमीतु हुव अला कुल्लि शैइन कदीर। ज़बान से बोलने की ज़रूरत नहीं है। 14 आसमान के फासले पर वो हमें देख रहा है। 14 आसमान के फासले पर हमें देख रहा है, क्योंकि 7 आसमान का जो फासला है उसके ऊपर, 7 आसमान के ऊपर फासले पर अर्श मोल्ला है और उस पर वो बैठा है। उसको अल्लाह कहते, उसको मालिक कहते, उसको दाता कहते, उसको पालनहार कहते, उसको हर एक नाम से पुकारा जाएगा। लेकिन वो अल्लाह ही है, खालिक है। वो तमाम दुनिया के निज़ामों को चलाता है। और देखो दोस्तों, इंसान एक दूसरे को देखे, उसको बनाने वाली मशीन एक ही अल्लाह है, एक ही ईश्वर है, एक ही खालिक है। उसके हज़ारों नाम है, 99 नाम सिफात है। इंसान दूसरे इंसान और अपने को और दूसरे इंसान को देखकर पहचानना है, और दोनों को गौर से देखना है कि बाबा इसको कंपनी, कौन सी कंपनी बनाने वाली है। इसको एक ही कंपनी बनाने वाली है, वो है आसमान के ऊपर जो बैठा है, उसको ईश्वर कहते हैं, खालिक कहते हैं, दाता कहते हैं, पालनहार कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। उसके हज़ारों नाम है, 99 नाम सिफात है। अपने अल्लाह को हमें पहचानने वाला अल्लाह बनाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह समझने की भरपूर हमें तौफीक अता फरमाए। और गौर और फिक्र, अल्लाह ने जो भी चीज़ें बनाई है, आसमान को बनाया है, ज़मीन को बनाए, उस पर गौर और फिक्र करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।